Yes. Yes, but now it's your turn. You can ask. First of all, let me answer Mr. Priyavarth. Priyavarth asked me that, sir, what was the question, Priyavarth? Sir, what is the meaning of abide? Yeah, he has asked me what's the meaning of abide. So then I told him that abide is always followed by the preposition by. Abide is always followed by abide के बाद हमेशा बेटा by आता है. इसका मतलब होता है मैं ये इन बातों से सहमत हूं. आप ये कह लीजिए. कई बार जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं, कई बार जब हम कोई किसी को रिटर्न में कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो उसमें लिखा होता है आई अबाइड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट. I abide by the following statement. I abide by the term and condition of this, of the rules. मैं इनसे बंधा हुआ हूं. मान लीजिए, suppose that there is a teacher, he go for any interview in any school. Dimple Meena is kindly requested, don't ask that question in between, like this one, but not in the written form. Not in the written form. When Dimple Meena, when it will be your turn, at the time you can ask it orally. उस समय बेटा आप इसको orally पूछ लेना. क्योंकि because when you एक minute, one by one, Sachdevi, I would come to you. Let me finish my answer. First of all, let me finish my answer. Then हमारी क्लास बड़ी मस्त जाएगी. बहुत मस्त जाएगी, बहुत अच्छी जाएगी बेटा. बस there are, I think that there are 32 students in the class. Presently, there are 32 students in the class, and if all the students they ask me simply one question, यदि आप एक कोई भी question पूछ सकते हैं, that can be silly question, that can be easy question, that can be typical question, वो आप किसी भी प्रकार का question पूछ सकते हैं, वो अच्छा ही लगेगा और मुझे रिप्लाई करने में मजा आएगा. So हमारे साथ हैं, we have Priyavarth with us, and he asked me the meaning of abide. So I told him, मैं उनसे बात कर रहा था, मैं उनको बता रहा था कि अबाइड के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो बाय आती है. इसका मतलब है आई एग्री कह लीजिए बेटा. अबाइड बाय का मतलब आई एग्री है ना जी. आई एग्री विद द टर्म एंड कंडीशन. नाउ सेकंडली दैट देयर इज अ स्टूडेंट, if anybody's mic is on, please, he or she is requested that please off it. Sir, जी ट्विंकल, I'm coming to you. ID EST हो सकते हैं ना? Hey, just 1 minute. Let me answer one more question. Would you please off your mic? जी. Now प्रथम नहीं, why it is echoing? अरे ये किसने दबा दिया था यार. जी. What I was saying that there is another question. There is another student. Her name is Dimple Meena, and she has asked me, sir, what does mean by homophone, sir? What does mean by homophone, sir? ये homophone का क्या meaning होता है, sir? Homo का मतलब same होता है. No. You can tell, but I know, Sachdevi, you can tell. Okay, it's your. You can tell. सर होमोफोन्स वो होता है जिस दो अलग अलग वर्ड होते हैं पर उनके मीनिंग भी अलग होते हैं पर साउंड में वो सेम होते हैं. Exactly. कमाल कमाल, सभी बजा दें तो कमाल हो जाए. थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी. सभी बच्चे, all the students are requested, please give her a big applause. Please give her a big applause. Please give her a big applause. It was right one. She has answered, sir, homo का मतलब सेम होता है. यदि मैं थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करूं, मैं इसको थोड़ा सा और ढंग से बताऊं तो ऐसे हो जाएगा, सर होमो का मतलब सेम होता है, फोन का मतलब आवाज होती है. होमो का मतलब सेम होता है और फोन का मतलब आवाज होती है. सर होमोफोन का मतलब सेम आवाज वाले शब्द. जी, दो शब्द सेम आवाज पर उनका जैसे मीनिंग अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, क्या कैन यू क्योट एनी एग्जाम्पल? जी सर जैसे फ्लावर आटा और फ्लावर फूल. एग्जैक्टली जैसे फ्लावर का मतलब आटा होता है और फ्लावर का मतलब फूल भी होता है ना. फ्लावर होता है, थोड़ा सा फर्क है बेटा उसमें. थोड़ा सा ये लगते होमोफोन्स हैं पर थोड़ा सा फर्क है उसमें. सर वो तो फ्लोर और फ्लोर में हो गया. हाँ, फ्लोर फर्श और आटा. जी. सर एक और है मेरे पास. सर एक डियर प्यारा, एक डियर हिरन. नहीं, फिर वो तो सेम हो गया ना बेटा. फिर ये होमोफोन्स कैसे हो गया? सर होमोफोनी तो है. जी, एनी अदर स्टूडेंट प्लीज. सर जैसे फोर, एक फोर रहता है उसके लिए और एक फोर रहता है फोर. Sivank Yadav is requested when other student they are giving the answer at the time, other student don't interrupt in between. Definitely it will be your turn now. This is the turn of Sachdevi. जी. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि what is the meaning of encourages? Encourageous.
जी दिग्विजय डागर ने बड़े सुंदर आंसर दिए हैं। दिग्विजय डागर ने कुछ शब्द कहे। एक सी होता है सर, सी होता है, सी का मतलब समुद्र भी होता है और सी का मतलब देखना भी होता है सर जी। उसी प्रकार से सर सी और ओशन में क्या फर्क होता है? सी और ओशन में SE जी ये परिवर्त बता देगा। परिवर्त जी, हेलो परिवर्त, यू प्लीज टेल मी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सी Yes, sir. एंड ओशन। The sea and ocean. जी सर मैं बताऊं? जी Ocean, so sir, ocean ओशियन is the महासागर होते हैं part. और सी सागर होते हैं। एक बार फिर वुड यू रिपीट वंस मोर जी प्रथम। सर सी तो सागर होते हैं और ओशियन महासागर। एग्जैक्टली जो बड़ा सागर होता है, जैसे इंडियन ओशन होता है, प्रशांत महासागर या इस प्रकार से जो बोलते हैं, सर जो बे ऑफ बड़ा जिसमें बंगाल। काफी समुंदर जो मिल जाते हैं। सो जो एक उसकी जो सागर होते हैं। सी का एक्सटेंडेड वर्जन, सी का एक्सटेंडेड वर्जन जो होता है वो एक वो ओशन होता है। सी एक लेट मी वन बाय वन लेट मी आंसर दिस वन। सो बिफोर सम टाइम मैं कुछ, ये फिर कौन कर गया, एक सेकंड। See, one by one. Priyavat, I am coming, beta. Priyavat, I am coming. All the students are requested. I am just coming. Let me answer. Satdevis are requested. Satdevis are requested. Please off your turn, off your mic. Not only Satdevis, but other students are also requested. By the time, by the time I finish my answer, जब तक मैं अपना आंसर फिनिश करूं, after that it will be your turn. एक रीना जी है, रीना कह रही है, रीना की बिटिया होंगी शायद मेरे हिसाब से। रीना की बिटिया है जो करिए टू और टू होता है सर, TW होता है और TOB, ये भी होमोफोन्स ही है सर। उसी प्रकार से अभी दिग्विजय भी बता रहे थे जैसे ड्यू होता है सर, है ना। उसी और एक तो बड़ा खतरनाक वर्ड लेके आया, प्रथम तो बहुत खतरनाक वर्ड लेके आया, यू लेके आया, EWE, यू, उसको भी यू बोलते हैं, YOU को भी यू बोलते हैं। और सर जी ड्यू भी, और एक वो पीने वाली ड्यू आती है उसको। एग्जैक्टली तन्वी भी कह रही है सर, एक तो पीने वाली ड्यू होती है सर, जिसके जैसे DEW है ना, ड्यू का मतलब ओस की बूंदे होती हैं, जो ओस की बूंदे होती हैं DEW ड्यू होती है। और उसी प्रकार से ड्यू विद ड्यू रेस्पेक्ट, कई बार बोलते हैं ना विद ड्यू रेस्पेक्ट, ड्यू का मतलब उचित या ड्यू का मतलब प्रॉपर होता है, ड्यू का मतलब सही होता है। कई बार ड्यू से वो दूसरे वाला ड्यू है ना DUE, उसका अपोजिट बनता है अनड्यू, उसका अपोजिट होता है अनड्यू होता है। यहाँ मेरे को सभी बच्चे क्लास में बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो एक कोई भी आप में अनड्यू शाई नहीं है, कोई भी आप में अनड्यू शाई नहीं है, खाम खान शर्मिला नहीं है ना, आप में कोई खामखा शर्मिला नहीं है। ऑल ऑफ यू आर, मैंने एक बार आपसे एक बार रिक्वेस्ट की थी और आप झमाझम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नाउ इट्स द टर्न ऑफ मिस्टर प्रियव्रत। यस प्रियव्रत। सर इमिनेंट का क्या मतलब होता है? एमिनेंट, एमिनेंट पर्सनैलिटी होती है। एमिनेंट का मतलब इलाइट होता है बेटा, इलाइट होता है, स्टीम्ड होता है, रेपुटेड होता है, प्रेस्टिजियस होता है। इमिनेंट। हाँ जी, इमिनेंट। IMMI Yes, sir. NENT। इमिनेंट का मतलब एक प्रेस्टिजियस होता है, सम्मानित होता है, प्रेस्टिजियस होता है, सम्मानित होता है। बस रीना, रीना बेटा बस, हाँ सवास वो अभी उन्हीं पर है। और क्वेश्चन रीना, इट विल बी व्हाट्स योर नेम रीना। रीना की बिटिया का क्या नाम है भाई? सर आश्री। हाँ जी, आश्री। आरसी, आरसी, आरसी आश्री। हम्म, आश्री। आरसी, आश्री आश्री आश्री, यस सर। आश्री, आश्री, आश्री। हाँ अब बन गई बात, अब बन गई बात। Once there was time when we and Asri we used to talk a lot. Once there was a time when Asri that I used to pronounce her name, I used to announce her name in the class, but it has passed. There is a gap in communication. It has passed so many days that we have not talked to other. After I think that after 1 month or after 15 to 20 days, she is again back in the class.
अदरवाइज आसरी की मदर है मिसेज रीना, सी इज ऑल्सो वेरी गुड स्टूडेंट, वो भी बहुत अच्छा है। क्या मम्मी पास में? इज योर मदर विद यू? आसरी, इज योर मदर विद यू? यस सर। Okay, that's good. That's good. Oh yeah, Rina, Ji, where were you, Rina? Were you there in the class? Today, were you there in the class? In the morning, you were. You were there in the morning. Okay, okay, Rina. Now, your mic is off, Rina. Must first of all confirm that when you say something Sorry, at the sir. time. Yes, sir. I was there in the class in the Okay. morning time. Yeah. Right now, Good, I good. was doing actually my stuff, so I asked her to join the class. I will, whenever whenever you need my help, I'll be there. Okay, yeah, sure, sure, sure. Thank you, Astri, and thank you, Rina. Ji. Thank you. So I think that who was asking? Somebody was asking me that Sachdevis, they are so accusative. Sachdevis, they are so accusative. First of all, let me take their question. Ji Sachdevis. सर हॉनरेबल का मतलब क्या होता है? किसका? हॉनरेबल। होनोरेबल नहीं होता बेटा, दिस इज एन ऑनरेबल। ये होनोरेबल नहीं होता है, दिस इज एन ऑनरेबल। दिस इज एन ऑनरेबल। एचओ, इसमें एच से इसमें साइलेंट होगा। दिस इज ऑनरेबल। ऑनरेबल का मतलब वही हो जाएगा बेटा जो प्रेस्टिजियस था, जो प्रेस्टिजियस था, जो इमिनेंट था, जो इस्टीम्ड था, जो इलाइट था। इलाइट का, प्रोमिनेंट का, इन सभी का एक ही मीनिंग होता है, ये ऑनरेबल होता है। ऑनरेबल जजेस एंड ऑनरेबल टीचर्स, ऑनरेबल प्रिंसिपल, सो मेनी टाइम्स स्पीक लाइक दिस। ऑनरेबल का मतलब? हाँ जी, नहीं है। ऑनरेबल का मतलब? ऑनरेबल का मतलब सम्मान के योग्य, some respected. Honorable mean respected, बेटा, you may call it respected. सर हम्म, सर हॉनरेबल का मतलब माननीय नहीं होता? हाँ कोई बात नहीं, माननीय कह लीजिए, सम्माननीय कह लीजिए, एक ही बात होती है, लगभग सेम ही होती है। पर ये बेटा इसकी प्रोनाउंसिएशन ऑनरेबल नहीं होती है, दिस इज ऑनरेबल। एच को बोल दीजिए ऑनरेबल, 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 ऑनरेबल या ऑनरेबल नहीं, आप दो बार नहीं लगा रहे। ऑनरेबल, ऑनरेबल नहीं, दूसरे ओ को पहले को ओ बोल, ऑनरेबल, ऑनरेबल। ऑनरेबल। या आपको तो प्रैक्टिस करने में भी बहुत मजा आता होगा क्योंकि आप ट्विंस हैं, तो आपस में ही प्रैक्टिस कर लेते होंगे। जी जी, प्लीज ऑफ योर माइक नाउ। इन जी प्रियव्रत, Excuse me, sir. जी सर, one by one. Sivank, now Priyavart is asking, after that it will be your turn. Ken and Ken, Z. Asri, thank you, Asri, that you have told, so you have given so many answers. I'm very happy with this one. Now that not in the message way, please ask me question orally. It will be better. When you will ask question orally, at the time we will be face to face, and that will be better. First of all, let's take Priyavart. Ji Priyavart. Sir, what is the meaning of addict? Sir, ADDICT. I know, beta. This is addicted. Mainly that this is used as an addicted. ये अकेला addict तो एक आदत हो जाएगी। Addict is a noun and addicted is an adjective. Addict एक noun है, addicted एक adjective है। Addicted का मतलब आदी होता है बेटा। देखिए किसी चीज की आदत, अच्छी आदत होना हैबिट होती है। अच्छी जो आदत होती है वो हैबिट होती है, और जो बुरी आदत होती है वो एडिक्शन होती है। जो बुरी आदत होती है वो एडिक्शन होती है, और जो बुरी आदत का, सच बताना प्रियव्रत, पापा कभी कभी करते हैं ना थोड़ी सी, कभी नहीं, श्योर, नेवर इन द पार्टी, नोट नेवर इवन इन द पार्टीज, Never, sir. नेवर। ओके, इज एनीबडीज फादर ड्रिंक? डज एनीबडी फादर ड्रिंक? जी, डज एनीबडी फादर ड्रिंक? क्या किसी के पापा ड्रिंक करते हैं? सच सच बता दो क्या बात हुई। नो सर। हाँ नहीं, वरना के नहीं करते, किसी के करते हो तो बताना प्लीज। अरे सारे के सब नहीं करते तो होंगे, एक दो के तो जरूर करते होंगे, ऐसी बात नहीं है। सर जी सर, ओरल साउंड और वर्बल साउंड में क्या अंतर होता है? हाँ जी, ओरल साउंड और वर्बल साउंड में? अरे वेरी गुड, इस पे भी आएंगे बेटा। विपिन, मैंने आपका क्वेश्चन है दैट हैज बीन नोटेड, उसको नोट कर लिया है। लेट मी फिनिश द क्वेश्चन ऑफ द। और एक हमारी डिंपल मीना है या विपिन सारन है, उन्होंने भी एक करोस का साइन भेज दिया। इसका मतलब पापा शराब नहीं पीते हैं, है ना? उसका मतलब नो हो गया। ऊपर जो कह रहे हैं ना, नो में आंसर दिया है। खैर मैं तो सिंपली वैसे ही पूछ रहा था बेटा, सिर्फ इतना कहने के लिए पूछ रहा था कि क्या बात है कि एक लत होती है ना, लत कह सकते हैं आप, आदत एक अच्छी होती है। सुबह एक्सरसाइज करना वो एडिक्शन नहीं है, सुबह एक्सरसाइज करना वो आपकी हैबिट है।
पर यदि कोई जैसे स्मोकिंग की And एडिक्शन using होती of है, phone is addiction. हाँ जी, हाँ, फोन एडिक्शन आजकल जैसे यूजिंग टू मच फोन, सारा दिन इंस्टा पे बैठे रहना, सारा दिन इस प्रकार से वो रील शॉर्ट को स्क्रॉल करते रहना, ये भी एक अपने आप में एक एडिक्शन है, नशा है ना जी। सर जो यूनिवर्सल टाइप चीज जो होती हैं जैसे अर्थ, मून, सन, सर इनके आगे द लगता है? लगता है जी, बिल्कुल लगता है बेटा। See, they are preceded by, they are, जी, now Sir, it's what the is the meaning of collapse? कोलैप्स का मतलब ढह जाना होता है बेटा, ढह जाना होता है ना, कोलैप्स हो जाना। जैसे बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग कई बार कोलैप्स हो जाती है, यूं एकदम से यूं नीचे की ओर ढह जाना, दैट इज नोन एज कोलैप्स, उसको कोलैप्स बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि शायद उस समय आप पैदा नहीं हुए होंगे, एट द टाइम यू आर नॉट बोर्न, you know that on 9/11 there was an attack. Pulkit, I'm coming to you. Student are kindly requested that when I'm answering somebody, जब मैं किसी का आंसर दे रहता हूँ उस समय प्लीज मत पूछिए, उसके बाद जब मैं ये कहूँ कि yes now you can ask, तो फिर हमारी उसमें क्लास में एक थोड़ी सी हार्मनी बनी रहेगी। एक बहुत ज्यादा एक कुख्यात एक टेररिस्ट होते थे, देयर वाज अ टेररिस्ट, एक्चुअली वो साइंटिस्ट भी था, उसका नाम ओसामा बिन लादेन था। कभी आपने सुना हो? ओसामा बिन लादेन था, उसने अमेरिका पर अटैक किया था। सर व्हाइट हाउस पर। व्हाइट हाउस पर नहीं, व्हाइट हाउस पर नहीं हुआ था बेटा। सर व्हाइट हाउस और WTO पर उन्हें फाइटर जेट थे वो हाईजैक किए थे। हाँ, अमेरिका के ही 2 फाइटर जेट तो नहीं थे, शायद पैसेंजर थे या फाइटर जेट थे, इसको तो मेरे को आइडिया नहीं है, पर वो हाईजैक करके और उन्होंने वहां पर जैसे उसको अटैक हुआ था, अमेरिका पे अटैक हुआ था। एंड फिर क्या था कि जो एक बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, वो दैट वाज अ ह्यूज बिल्डिंग एंड ऑल ऑफ देम दैट दे वर कोलैप्स, ऐसे ढाके एकदम से पूरा धुआं बन गया था उनका। तो बिल्डिंग का ढह जाना होता है, उसको कोलैप्स बोलते हैं। या कोई भी दुख की बात सुन के, बहुत ज्यादा बड़ी दुख की बात सुन के यदि कोई गिर जाता है तो ही कोलैप्स्ड, ही और सी कोलैप्स्ड जी। नाउ इट्स द टर्न ऑफ who's asking? Now it's the turn of again जी 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 तन्वी। सर वर्सन जो फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट का मीनिंग क्या होगा? फिगर ऑफ स्पीच ट्रांसफर्ड एपिथेट, यस सर, इट इज अ पोएटिक डिवाइस। जी, आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है, बट देखिए एपिथेट, ट्रांसफर्ड का मीनिंग आप समझते हैं, जो बदल जाता है। इन एपिथेट का मतलब आप ये कह लीजिए कि जो उसका नाम होता है ना। भाई एकदम से तन्वी नहीं ध्यान आ पा रहा है बेटा, एकदम से नहीं ध्यान आ पा रहा है। डेफिनेटली आई लेट यू नो फॉर दिस वन, आई लेट यू नो फॉर दिस, मैं इसके बारे में डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा, पर एक एग्जैक्ट जो सजा हुआ आंसर है ना, दैट इज नॉट इंस्टेंटली स्ट्राइकिंग टू माय माइंड, दैट इज नॉट इंस्टेंटली स्ट्राइकिंग। यदि आप थोड़ा सा हिंट दे दे तो हो सकता है मैं उसको एलोबरेट में कर दूंगा फिर। सर आई गिव एन एग्जांपल जी सर, द पोलिश ट्रैफिक, द पोलिश ट्रैफिक in this line the poetic device transferred epithet used. पुलिस ट्रैफिक या ट्रैफिक पुलिस, समझ नहीं पाए, एक बार फिर से बताइए बेटा प्लीज। नहीं, यहां से तो नहीं आ पाएगा भाई, ऐसे दिख नहीं पाएगा शायद आप। polished traffic द पुलिस traffic ट्रैफिक, yes sir. पुलिस ट्रैफिक ना, नहीं बनी बात बेटा मेरी भाई, मैं बहुत ध्यान से नहीं समझ पाया इसको। कोई बात नहीं, I'll see that what does mean by transferred epithets and how that tomorrow I'll elaborate it in the class. Tomorrow I'll elaborate in the class. कल इसको क्लास में एलोबरेट कर लेंगे, आई एम श्योर। एक बार मेरे पास व्हाट्सएप जरूर कर देना बेटा, जो आप पेज है आपके पास, ये पेज मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, और मैं या तो व्हाट्सएप पे आंसर दूंगा या फिर क्लास में भी उसका आंसर देंगे जी। Sure, sir. जी, somebody else, anybody else please who want to ask the question? Is it Arvind? जी सर BY और BUY में अंतर क्या होता है? ये कौन पूछ रहा है? कोई अच्छा, मिस्टर करुण। अरे करुण, हाउ आर यू? कैसे हैं करुण आप? आई एम फाइन सर।
Good, good. अरे बहुत simple, but I would not answer that. Who would answer this one? This would be answered by Mr. Arjun Malik. Arjun Malik, there is a Mr. Karun is there here with us, and he has asked a question, sir. What does mean by buy and BUY? What's the difference, sir? सर बाय मतलब किसी के द्वारा करना और BUY मतलब खरीदना. Exactly. एक buy होता है, वो क्या हुआ? She has started crying, I think though. Sachdevi, she is not crying. She was making face like this. You know, she was interested to answer that one. वो answer देने वाली थी, पर somebody else, this Mr. Arjun, he has answered कि सर एक तो buy होता है, buy का मतलब के द्वारा होता है ना. दूसरा BUY होता है. वैसे ये होमोफोन्स हैं सर, वैसे ये होमोफोन है. बाय दोनों होमोफोन्स तो हो गए, पर एक का मतलब खरीदना होता है, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म मेरे को बता देगा मिस्टर अंकित. अंकित दिख रहे हैं मेरे को. अंकित, अंकित, हाउ आर यू? जल्दी प्लीज ओपन योर माइक सून. मिस्टर अंकित कुमार, open your no Priyavat, you can tell only beta whom I ask. Only the student has to answer. Only whom I ask, वही student answer देंगे जिनसे मैं पूछूं. Please. जी Mr. Ankit. Ankit is not replying. He is only looking at the screen. Why are you looking? जी Ankit, can you answer that buy second and third form of buy? सर बाय का सर. हाँ? BUY बाय का. BUY buy का. सर बॉट. Yeah, boat. Buy boat होता है बेटा. BUY buy, BOUGST boat. Buy boat. Cats coat. Teach tote. Ballu boat. Ballu boat. ना ballu boat को उसमें सर जी. Sir, what is the difference between see, looking or watching? बहुत आसान है बेटा, सभी को पता है. everybody knows. सर कल मुझे समझ नहीं आया था. तो कोई बात नहीं, एक बार आप माइक ऑफ कीजिए हमारे साथ. मैं आंसर नहीं दूंगा, अपने बच्चे बड़े एक्सपर्ट हैं, है ना. वो सभी को आप ऐसे जैसे कितना मजा आता है जब हम अपने ज्ञान को एक दूसरे से शेयर करते हैं, है ना. कौन बालू बता देगा क्या? बालू, मिस्टर बालू, वंस बालू, वेयर आर यू? वो एक वल्चर को देख रही थी. वो एक उसने वल्चर को क्या बोला था उसने? शी इज लुकिंग अ वल्चर. नो सी प्रियव्रत कह रहे हैं सर. मैं बता दूंगा जी. प्रियव्रत बता दो आप. यस मिस्टर प्रियव्रत, प्लीज आंसर. प्रियव्रत का शायद नेटवर्क का कोई इशू आ गया है, जिसके कारण उनका नहीं, आपका पोज हो गया था बेटा. जी रीना पूछ रही है. रीना सी इज रीना, I would request you that please don't ask question in a message form. In the message form, please ask question in that form, in the oral and verbal. जैसे अभी पूछ रहे थे ना, verbally. Please ask it verbally, not in a message form. एक बार मैं जी सर आप मेरा आंसर बता दो. हाँ, मैं आंसर बता रहा हूँ बेटा. सबसे पहले सी, ये करिए सर. 3 शब्द होते हैं. सभी एक बार माइक ऑफ रखना बेटा. बस यही आज की क्लास में इतना ही एक्सप्लेन होगा. यही आंसर एक्सप्लेन होंगे. उसके बाद हमारी क्लास ओवर हो जाएगी. जो बात कर रहा था कि ये पूछ रहे हैं सर 3 शब्द होते हैं. देयर आर 3 वर्ड. वन इज सी, जिसका मतलब देखना होता है. लुक का मतलब भी देखना होता है. वॉच का मतलब भी देखना होता है. तो सर इसमें फर्क क्या होता है फिर? सी का मतलब देखना, लुक का मतलब देखना, वॉच का मतलब देखना. तो इसमें फर्क क्या हुआ? अभी शायद प्रियव्रत का माइक ठीक चल रहा है. अब ये आंसर दे देंगे. जी प्रियव्रत दे दो बेटा जल्दी से. सर जो वॉच होता है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल फोन और टीवी में जो चीजें देखते हैं उसके लिए यूज होता है. और आप ये कह सकते हैं प्रियव्रत की किसी भी मोशन पिक्चर को देखना, किसी भी ड्रामा को देखना, स्टेज परफॉर्मेंस को देखना, है ना. किसी चीज को एक्शन में देखना वॉच होता है. आई एम वॉचिंग मोबाइल, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग ड्रामा, आई एम वॉचिंग स्क्रीन. वॉच मेनली स्क्रीन के लिए यूज होता है. जी सेकंड सर जो लुक होता है मतलब कि वो देखने के लिए होता है. और सर जो लुक और सी का डिफरेंस नहीं बताया. हाँ, लुक का मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज पे देखना, ध्यान से देखना भी कह सकते हैं. किसी पर्टिकुलर चीज पे भी देखना. और सी का मतलब जो अपने आप दिखाई दे जाए,
जो अपने आप जब आप आंखें खोलते हैं तो आपको जो दिखता है वो सारा सी है। आप सर देख सकते हैं इस समय बेटा आपके बैकग्राउंड में, मेरे फोन के बैकग्राउंड में कर्टेन लगा हुआ है, ठीक है ना। आई एम लुकिंग एट द क्लास, आई एम लुकिंग एट द स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट पे देख रहा हूं, आई एम लुकिंग एट द स्टूडेंट, आई एम लुकिंग एट द स्क्रीन, बट आई ऑल्सो सी द कर्टेन बिहाइंड इट। आई ऑल्सो सी द, एक बार मैं यदि थोड़ा सा आपको घुमा के दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं इस साइड ये कर्टेन लगे हुए हैं, ठीक बात है, यही कर्टेन लगा, आप भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं शायद। वैसे जब मैं बोल रहा हूं तो यू आर लुकिंग एट मी, प्रेजेंटली यू आर लुकिंग एट मी, बट यू ऑल्सो सी दिस बैकग्राउंड, बट यू ऑल्सो सी दिस बैकग्राउंड। आपकी कोई इच्छा नहीं है देखने की, पर आंखें खुली है, अब आंखों के सामने है तो देखते ही है। तो जो बिना एफर्ट के आराम से नेचुरली जो दिखता है वो सी होता है। किसी चीज को ध्यान से देखना, किसी चीज पे ध्यान से देखना वो लुक होता है, और भाई स्क्रीन को देखना वो वॉच होता है, ठीक बात है। और सर किसी का जी सर सर टी सर टी और टी डबल ओ में फर्क क्या है? एक तो टी डबल और दूसरा टी ओ टीओ। टू। एक तो टू होता है, दूसरा टू होता है, एक तो टू होता है दूसरा टू होता है बेटा। देखिए इसमें फर्क ही होता है, सर दूसरा से दूसरे सर का जो मीनिंग, 1 मिनट बेटा, दूसरे का मतलब भी होता है, दूसरे का मतलब भी होता है, जैसे मैं भी, आई टू, मैं भी आई टू, प्रणव एंड कौशल यूनियल भी, प्रणव एंड कौशल यूनियल भी, प्रणव एंड कौशल यूनियल टू, प्रणव एंड कौशल यूनियल टू। कैसे प्रणव आप, प्रणव एंड कौशल, हाउ यू माय फ्रेंड दैट, मैं तो भूल ही गया था आपको, नहीं भूला तो नहीं है जी। एक बार मैं सभी स्टूडेंट को याद कर लेता हूँ, आज हम इतनी क्लास करेंगे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने गजब के क्वेश्चन पूछे, बहुत अच्छा जी। सर और Sir, what is the meaning of zeals? और बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिस्कस टुमारो बेटा, बाकी क्वेश्चन सर जितने भी जो होंगे बिना हाँ सर जी जो बिना एफर्ट के देखना पड़ता है वो सी होता है कि लुकिंग? जी। देखिए एक बार मैं अगेन आई वुड लाइक टू, मैं एक बार अपने स्टूडेंट से मिलना चाहूंगा। हमारे पास हमारे साथ विपिन सारन है, रीना की बिटिया आश्री है, और आश्री ने भी कुछ पूछा था, शायद मैं आश्री का आंसर तो नहीं दे पाया हूं अभी तक। आश्री एक बार फिर पूछेंगे, वो क्या था बेटा, व्हाट वर यू आस्किंग, अभी एक बार वैसे पूछिए आश्री, आवाज। हाँ जी। What is the meaning of unfortunate? अनफॉर्चुनेट है ना, एक फॉर्चुनेट होता है, लकी, आप ये कह सकते हैं फॉर्चुनेट का मतलब लकी होता है, और अनफॉर्चुनेट का मतलब अनलकी होता है बेटा। एक मिनट में पूरा कर दूं, फॉर्चुनेट से फॉर्चुनेटली बनता है, और अनफॉर्चुनेट से अनफॉर्चुनेटली बनता है। लुकिंग का क्या होता है? बस अरे यार कमाल है, मैंने तो सर ऐसा लुकिंग का क्या होता है? अभी बताएंगे बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आंसर, पहले एक बार मैं आसरी का आंसर दूं, उसके बाद आप ऐसा कर लीजिए बेटा, आप मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, आप 1000 क्वेश्चन पूछो, लाख क्वेश्चन पूछो, कुछ भी है, मैं आपका बहुत रिलायबल जवाब दूंगा, है ना। कभी डांटेंगे नहीं, कभी धमकाएंगे नहीं, कभी इरिटेट नहीं होंगे, बहुत मजे आते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा आसरी का आंसर दे दे बेटा। आसरी, फॉर्चुनेट का मतलब लकी होता है, अनफॉर्चुनेट का मतलब अनलकी होता है। जिसके पास फॉर्च्यूनर होती है वो फॉर्चुनेट होता है, जिसके पास फॉर्च्यूनर होती है वो फॉर्चुनेट होता है किसी के पास यहाँ क्लास में, सच बताना झूठ मत बोलना, किसके घर में फॉर्च्यूनर है? अभी तो दिख नहीं रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं जी 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 जी। अरे सभी मेरे जैसे ही हैं, है ना, सभी मेरे जैसे। अर्जुन कह रहा है, अर्जुन सच है क्या, फॉर्च्यूनर है तुम्हारे? क्या सर? फॉर्च्यूनर गाड़ी है तुम्हारे पास, फॉर्च्यूनर? ना सर। हाँ, फॉर्च्यूनर उन्हीं के पास होती है जो फॉर्चुनेट होते हैं। वैसे मजाक कर रहा हूँ, ये बात तो टोटली सच तो नहीं है, पर फॉर्च्यूनर हो तो मजे तो आते ही हैं, ठीक है ना जी। फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेटली जी, फॉर्च्यून जो लक होता है ना उसको फॉर्च्यून बोलते हैं, जो लक होता है उसको फॉर्च्यून बोलते हैं। आज इतना ही करते हैं, कल आपसे मिलते हैं इसी समय, तब तक गुड डे, सर कीप एंजॉयिंग। सर सर बाय। इस क्लास को यूट्यूब पे डालिए सर, ये बहुत अच्छी क्लास है। हाँ भाई, सर इस क्लास को यूट्यूब पे डालिए सर, ये बहुत अच्छी क्लास है। ठीक है, ठीक है अरविंद, डाल देंगे भाई, है ना। नहीं, मैं अरविंद ये कह रहा था बेटा कि मुझे आइडिया तो था, पक्की बात है, यदि मैं सीनियर बैच में इस प्रकार से बातें करूं तो शायद इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे और अरे डिस्पेंस हो जाएगी। पर अपने कितने प्यारे बच्चे हैं कि इस बच्चे प्रकार हैं से हमारे, क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत क्विजिटिव बहुत हैं, अच्छी और क्लास है सर, रियली बहुत अच्छी क्लास है। ठीक है अरविंद भाई, डालिए सर। लुकिंग का श्योर। सर कल आंसर दे दोगे? हाँ जी, सर मेरा क्वेश्चन का आंसर कल दे दोगे?
श्योर दे देंगे बेटा, मैं कैसा ना, तो मुझे तो देखिए कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए keep enjoying our good day। कल बताऊंगा बेटा सारी चीजें।